Okay, good morning, students. In the previous class, we have studied about what we have studied about contract of guarantee and contract of indemnity. ठीक है? With examples, I have told you कि क्या क्या important है and what you have to study for your exam, right? So आज हम यूनिट 2 के रिमेनिंग पार्ट करेंगे, that is contract of bailment and pledge and contract of agency. ठीक है? So first of all, we will start with contract of bailment. If try to understand it with examples. जब मैं examples करा रही हूँ तो उस चीज को 100% concentration के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको वो चीज concept याद हो, ठीक है? So what is contract of bailment? I hope you have understood what is contract of guarantee and indemnity, क्योंकि उसी का ही ये related है. We have already studied in our previous class कि ये जो contract of guarantee है, contract of indemnity है, contract of bailment है, contract of agency, contract of payment, ये सब कुछ, ये जो 5 contracts है, these all are comes under the purview of special contracts. ठीक है? तो ये जो एक essential contract की जो validity है, in order to make it an essential, the validity, the essentials are to be same. ठीक है? बस थोड़े एक आध exceptions आ जाते हैं, बस यही हमको समझना है, बाकी ये सब एक special contracts के अंदर आते हैं. ठीक है? So now what is bailment or what is this contract of bailment? We all enter into variety of contracts in our day-to-day life. There are some contracts in which we hand over our possession to goods to another person for some purpose. हम देखते हैं, हम कभी-कभार हम एक कोई भी particular goods के owner होते हैं, but हम ownership transfer नहीं करते. Instead of that, we transfer the possession. So this possession transferring of possession is the main concept of this contract of bailment. ठीक है? In such a case, when we are transferring our possession, not the ownership of possession तो अलग-अलग चीज है. ठीक है? For example, this mobile phone is mine. I am the owner of that, but I am giving it to you for your purpose, for your use. So I am transferring the possession, but I am still the owner of that phone. ठीक है? So this is the contract of transferring of the possession of goods to another person for some purpose. Okay? So in such a case, legal relation arises between the two parties and the latter is under an obligation to return the goods to the former. This is known as contracts of bailment. ये जो contract बन रहा है दो लोगों के बीच में, जहां पर first party is transferring its a possession, not the ownership, to another person, and in return जो सेकेंड पार्टी है उसकी ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती है कि वो उस गुड को वापस करेगा टू द फर्स्ट पार्टी. दिस लीगल रिलेशन इज टर्म्ड एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. ठीक है? क्लियर है? So this term bailment has been derived from a French word bailer, which means to deliver or handling over goods under the contract. Basically इस जो contract of bailment है, इसमें two parties होते हैं, that is bailor and bailey. ठीक है? अब जो पर्सन डिलीवर करता है गुड्स को, ठीक है, ही इज नोन एज बेलर, एंड द पर्सन होम द गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसको गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, वो हो गया कौन? आपका बेली. ठीक है? सो एंड द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड बेलमेंट. और ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन दीज टू पार्टीज, द बेलर एंड द बेली, इज नोन एज व्हाट? बेलमेंट. ठीक है? सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. ठीक है? ये है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का क्लासिक एग्जांपल वेयर देयर इज अ टू पर्सन. फर्स्ट इज एक्स एंड हिज नेबर और हिज फ्रेंड वाई एंड हिज फ्रेंड एक्स. ठीक है? ये जो वाई है इसके पास एक गाड़ी है, ठीक है, कार है, फॉर एग्जांपल सैंट्रो कार. ठीक है? तो अब ये एक्स आता है, वो बोलता है कि मेरे पास तो कार नहीं है. एक्स दौड़ के वाई के पास जाता है कि मुझे कहीं जाना है, तो आई वॉन्ट योर कार, कैन यू प्लीज गिव मी योर कार. ठीक है? तो वो बोलते हैं हाँ, तू तो मेरा दोस्त है, मैं तुझको दे सकता हूँ. ठीक है? सो हु इज द ओनर? वाई इज द ओनर एंड ही इज गिविंग हिज कार, ही इज गिविंग द पोजीशन ऑफ हिज कार, नॉट द ओनरशिप ऑफ द कार, टू एक्स हु इज फ्रेंड ऑफ वाई. ठीक है?
क्योंकि ये गुड्स दे रहा है, हु इज डिलीवरिंग, सो ही इज द बेलर, एंड जो रिसीव एंड में है, रिसीविंग एंड में है, ही इज द बेली. ओके, सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पोजीशन. ठीक है, अब पर्पस क्या है इस कार का? यूज ऑफ द कार. ठीक है, कार धोने के लिए नहीं दे रहे, उसको यूज करने के लिए दे रहे. तो देयर इज हैविंग सम पर्पस. When the baler is transferring the position of a particular good, he or she has some purpose related to that. ये सब ही एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को एस्टैब्लिश करता है. ठीक है, सो यहाँ पर बेली का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आफ्टर यूजिंग द कार, जिस पर्पस के लिए उसने कार को लिया, he have to hand over, he have to return the car to the baler. ठीक है, so this is the whole concept of contract of bail. ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में फायदा किसका हुआ? फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ एक्स का. क्यों? उसको कार मिली है फॉर डूइंग हिज पर्पस. ठीक है, कोई भी उसको जो भी काम था, कहीं जाना था, कुछ सामान लेकर आना था, जो भी था, उसने उस कार का यूज किया. यहाँ पर वाई ने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, कोई अमाउंट नहीं लिया, बट ही हैज गिवन द कार, he is transferring the position of the car to the bail. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसका दोस्त है. ठीक है, तो यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है. ओके, सो दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली. यहाँ पर बेलर का कोई बेनिफिट नहीं था, वो तो अपनी कार को अपने दोस्त को दे रहा है, तो उसका क्या बेनिफिट है? इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बट बेली का बेनिफिट है, उसको वो कार मिल रहा है, एंड ही और शी कैन एबल टू यूज दैट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. ओके, so now according to section 148 of Indian Contract Act 1872, bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose. जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, एक पर्पस होना चाहिए, और बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन, वन पार्टी टू अनदर पार्टी upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed for according to the directions of the person delivering them. अब जो सेकेंड पार्टी जिसको वो गुड्स मिला है, who has that possession now, he has that responsibility or the obligation to return the good to the baler. ठीक है, this is all defined under section 148 of Indian Contract Act 1872. Is that clear? Examples बहुत यहाँ दिया हुआ है, जैसे A lends his books to B to take examination. This is also contract of bailment. A gives Titan watch to B as a security for loan. This is also a example of bailment. These are the small examples of bailment. But with my example, I guess the concept is pretty much clear. Okay. Explanation to section 148, which I have already given you. Okay. Come to the essentials of valid contract. ठीक है, अब essentials of valid contract of bailment, इसमें क्या आते हैं? Already I have told you that it is a special contract. Special contract कौन से contracts होते हैं? जो कि almost all the elements of a valid contracts are being same, बस कुछ exceptions आ जाते हैं. So that exceptions we are studying. ठीक है, जैसे इस bailment में with consideration भी हो सकता है, without consideration भी हो सकता है. In the previous example जो मैंने first example दिया, उसमें क्या था? Without consideration. So valid contract में क्या था? There should be a valid consideration, but यहाँ पर वो consideration missing है. Okay, हम next example पढ़ेंगे जहाँ पर consideration is also being given in the contract of bailment. So these are the small changes which are there. Otherwise, all the essential elements of a valid contracts are same and in all the special contracts. ठीक है, this is all I have covered in the previous class, but still I am repeating it. ठीक है, क्योंकि syllabus बहुत ज़्यादा है, तो it's your duty to read more and more. I am giving you all the materials which are relevant for your exams and all the important topics which are relevant for exams. But जैसे मेरी obligation है आपके लिए, वैसे ही आपकी एक obligation है खुद के लिए to study more and more. Okay. फर्स्ट टाइम आप देने जा रहे हैं दिस ऑफलाइन एग्जाम. ओके, सो आई लिटरली वांट कि आपको वो स्कूल डेज से बाहर आकर खुद को प्रिपेयर करना है इस वे में. खुद यू शुड बी एबल टू राइट द आंसर्स इन द लिमिटेड टाइम. जो टाइम है 3 and 3.5 hours का, उस
टाइम में आप सारे आंसर्स कंप्लीट कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट का आपने बी पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, थर्ड का ए, तो सेकेंड एटलीस्ट अटेम्प्टेड, ठीक है। थोड़ा सा भी जो भी आपको याद आ रहा है, मैंने क्लास में पढ़ाया है समथिंग और रिलेटेड टू दैट टॉपिक, जो भी आपको याद आ रहा है, यू शुड इन ऑर्डर टू गेट अ गुड मार्क्स अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, ये याद रखना, ओके। Now moving to this contract of bailment के valid essentials क्या है? First, it is a contract between parties. You all know that it is an agreement between bailer and the bailey. ठीक है? A contract of bailment may be expressed or implied. Expressed contract क्या होता है? Implied contract क्या होता है? I know अब तक आप समझ चुके हैं. This is 7th और 8th class, जहाँ पर मैं starting से expressed contract और implied contract क्या होता है ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। In certain exceptional cases, it may be implied by law. Example: finder of goods acts as a bailey till the true owner is found out. Indian Contracts Act 1872 में यूनिट 1 में ये जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, इस पर मैंने एक पूरा क्लास डेडिकेट किया था। इसमें 4-5 स्लाइड्स मैंने डेडिकेट किया था। सो जस्ट रेफर दैट फाइंडर ऑफ गुड्स। वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है बिटवीन द फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है, उसको हम बेली कहेंगे और जो उसका ट्रू ओनर है वो है बेलर, ठीक है। सो दिस इज आल्सो द कांसेप्ट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज फाइंडर ऑफ गुड्स, इसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ड्यूटीज है, these all things I have discussed. Just refer to that notes which I have already given you to this Google Drive, ठीक है। उस Google Drive में जाइए, जिस पता देखिए, निकालिए वो स्लाइड्स और उसको पढ़िए, and then you are getting any difficulty, then obviously you can contact me through Teams app or through email, ठीक है। So अभी इसलिए मैं इस फाइंडर ऑफ गुड्स को मैं फिर से बताने रही हूँ, because I don't want to waste any time, because there is a lot of syllabus still left, तो मैं सब कुछ कवर करना चाहती हूँ, ठीक है। So this is your duty. Next is delivery of possession of goods. Delivery of possession of goods means एक जो बेलर है, he is delivering the goods, he is delivering the possession of the goods, not the ownership of the goods to the bailey, ठीक है। In order to constitute a bailment, a change of possession of goods is must. There should be change of possession of goods, ठीक है, otherwise वो contract of bailment establish ही नहीं होगा, okay। Mere custody of goods must be distinguished from the possession of goods. One who has the custody of goods without possession, like a servant or a guest using his master's or host goods, does not become a bailey. इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर पर एक सर्वेंट है और आपने सर्वेंट को अपनी कार की चाबी दी और कहा कि साइड वाले मार्केट से 10 किलो आम लेकर आइए, 10 किलो मैंगोस लेकर आइए, ठीक है। सो दिस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, दिस इज ओनली द कस्टडी ऑफ गुड्स। जो कार की कस्टडी है उस आपने उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया, आपके ही काम के लिए। सो दिस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तभी होगा जब यू आर गिविंग इट द पोर्शन ऑफ द गुड्स फॉर हिज बेनिफिट, ठीक है, वो कस्टडी नहीं है। आप कोई सर्वेंट को या कोई गेस्ट को आप ऐसे दे रहे हैं, सो दिस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ओके। There is a classic case law between Kalia Perumal versus Willow Lakshmi. It is a case of 1938. Here, a lady employed by B or jeweler, जो B है वो jeweler था, for melting her gold jewelry and making new one out of it. Every evening, she used to receive the partly finished jewelry and put it into a box kept at B's premises. She used to retain the keys of the box with herself. One night, A discovered that jewelry was stolen from box and A sued B for holding him liable as bailey. There was no bailment as the jewelry has re-delivered to the jeweler to A. Hence, A had to bear his loss. क्योंकि B से वो A लेकर आ जा रही थी every time, तो वो बी के घर पर रख रही थी, लेकिन वो लेकर तो आ रही थी ना, जो बी है वो जो पार्ट ऑफ ज्वेलरी है वो ए को हैंड ओवर कर दे रहा था। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ए की होगी।
तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एस्टैब्लिश नहीं होता है, ठीक है। Thus, if there is no delivery of possession of goods, there is no bailment. So, there should be delivery of possession of goods, ठीक है। अब ये जो डिलीवरी है, this can be of two types. First is actual delivery of possession and another is constructive delivery of possession, ठीक है। अब actual constructive में क्या difference है? Actual delivery may be made by physically handing over of goods by bailor to bailee. Example, delivery of watch or computer for repairs. इस actual delivery में क्या होता है, आप physically अपने जो goods को है उसको hand over कर रहे हैं by the bailee to the bail, by the bailor to the bailee. क्या कर रहे हैं, आप अपनी वॉच को आप रिपेयरिंग के लिए दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कंप्यूटर को दे रहे हैं. सो दैट इज द एक्चुअल डिलीवरी. फिजिकली यू आर हैंडलिंग. इन एग्जांपल, द कार इज एक्चुअली बीइंग डिलीवरी. दैट कार की जो पोजीशन है वो एक्चुअल में ट्रांसफर हो रही है, एक्चुअल में वो फिजिकली गुड इधर से उधर जा रहा है, ठीक है. नेक्स्ट इज constructive delivery of possession. In constructive delivery may be made by doing something which has the effect of putting the goods in possession of the intended bailee or any person authorized to hold them on his behalf. Example of delivery of railway receipt or bill of lading. Bill of lading is a concept of international business जहाँ पर जिसके पास वो bill of lading होगा, he has that possession of goods. सो इसमें एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुआ है, अभी तक वो ओनर के पास द बेली के पास पहुंचा नहीं है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वेयर दैट एक्चुअल डिलीवरी हैज नॉट बीन हैपेंड टिल नाउ. ओके. The case law between Appleton versus Ritchie Taxi. This is a case law of 1942. In this, A, the plaintiff parked his car in the parking lot of B, the defendant. A took the ticket from the attendant and gave keys to the car to him. When he returned, he discovered that his car has gone. After some time, the car has found, but its articles were missing. क्या हुआ, A ने B के पार्किंग लॉट पे अपनी कार को पार्क किया और वहां से उसने जो स्लिप होता है, पार्किंग स्लिप, वो भी उसने लिया. लेकिन जब A वापस आया अपने कार के पास, तब देखा कि कार गायब है, ठीक है. फिर बहुत ढूंढने के बाद कार मिला, ठीक है. अच्छा, लेकिन जब कार मिला, उस कार के अंदर जो भी आर्टिकल्स थे, जो भी सामान थे ए का, वो सब कुछ मिसिंग था, ठीक है. सो नाउ व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट, व्हाट द कोर्ट हैज गिवन द जजमेंट, held possession of the car was delivered to the parking lot attendant as a bailee. अब जो कार को हम डिलीवरी पार्क करते हैं ना किसी पार्किंग लॉट में, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है. वहां पर हम एज अ बेलर हम क्या कर रहे हैं, वहां के अटेंडेंट को हम उसको दे रहे हैं एज अ बेली, ठीक है. वो जो अटेंडेंट है वो बेली है एंड वी आर द बेलर. सो देयरफॉर defendant had to prove that car has not stolen due to their carelessness, ठीक है. सो दिस इज यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्रिएट हुआ है, जहां पर ए ने अपने कार को बी के पार्किंग लॉट में पार्क किया था और उसके आर्टिकल्स मिसिंग है. सो उसने जब पार्क किया अपना कार, सो एज अ बेली ही हैज ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ द कार टू बी हु इज द बेली. ओके, दिस इज दैट कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है. समझ में आया. नेक्स्ट इज नो चेंज ऑफ ओनरशिप. बेलमेंट में कोई ओनरशिप की चेंजेस नहीं आता है. इन बेलमेंट, बेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर ऑफ गुड्स इवन इफ द गुड्स मे बी इन द पोजीशन ऑफ बेली. अगर उस केस में जैसे एक्स के पास वाई का कार है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो चुका है, लेकिन एक्स इज नॉट द ओनर ऑफ द कार, ठीक है. ओनर हमेशा ही बेलर रहेगा. इवन इफ बेली के पास वो कार है, लेकिन स्टिल द ओनर विल बी द बेलर, द बेलर विल बी द ओनर. ओके. नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पस. जैसे मैंने कहा, कोई पर्पस होना चाहिए, ठीक है. देयर शुड बी अ पर्पस. Section 148 provides that under the contract of payment, goods must be delivered for some purpose. There should be some purpose, such as safe custody, security for debt, lending, clearing, repairing, change of form, carriage, etc. ठीक है. So ये जो examples है ना, ये these examples should be remembered by you.
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं? सेफ कस्टडी का जो हम पार्किंग लॉट वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा, ठीक है। फिर सिक्योरिटी फॉर डेथ, कोई सिक्योरिटी आप ले रहे हैं फॉर योर डेथ, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ बेलमेंट, ठीक है। देन लेंडिंग, क्लीनिंग, रिपेयरिंग, चेंज ऑफ फॉर्म, ऑर्नामेंट्स और स्टिच क्लॉथ्स, कैरेज एक्सेट्रा, ये सब कुछ आता है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। अब आपका क्या हो सकता है, एक छोटा सा केस स्टडी आ जाए कि A has given his cloth to tailor for stitching his clothes, ठीक है। अब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपने यहाँ पर ये सब याद कर लिया होता है कि सेफ कस्टडी, सिक्योरिटी ऑफ डेप्थ हो, लेंडिंग हो, क्लीनिंग हो, रिपेयरिंग हो, चेंज ऑफ फॉर्म हो, कैरेज हो, ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आता है। तो आपको झट से याद आ जाएगा कि ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, एंड दैट मेक्स योर आंसर करेक्ट और ऑटोमेटिकली 6 मार्क्स आपको मिल गए उसमें, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी। तो आपको ये एग्जांपल्स बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे इफ यू आर वांट टू फेच गुड मार्क्स, ठीक है। The relationship of bailor bailey does not arise where the goods are delivered by mistake. अगर by mistake अगर किसी के पास मेरा सामान चला गया है, so that is not the contract of bailment, ठीक है। Generally, the delivery of goods is the result of a contract, but sometimes bailment may be implied from the act of the parties or the circumstances of the case. कुछ cases के through हम mostly the contract of bailment is expressed, but कुछ instances में it can be implied, ठीक है। Next is movable property. A contract of bailment is concerned with movable property only, but money is excluded from the category of movable property. Deposit of money is in the bank does not constitute bailment, and the relationship between banker and customer is that of creditor and debtor. So movable property में ही contract of bailment establish होता है, ठीक है। But जो money है, this is also known as a movable property, but money is not comes under the contract of bailment. Okay, you have to remember this. Next is return of specific goods. Obviously, when the bailor is transferring the possession of goods for a specific purpose for the benefit of bailee, the bailee has to return the goods at a specified time to the bailee, okay, to the bailor. So this is the concept key essentials of valid contract of bailment में क्या क्या आता है, ठीक है। Next is we will discuss about kinds of bailment. Before that, I will like to take any doubts if you have any till now. Good morning, everyone. I'm already discussing every chapter's important questions during the class. ठीक है, so आप थोड़ा कंसंट्रेशन दीजिए। मैं इनडायरेक्टली मैं बोल ही देती हूँ कौन से इंपॉर्टेंस है। डायरेक्टली आई कांट से कि यही एग्जाम में आएगा या यही आ सकता है, बट indirectly I always hint you regarding the important questions, so you have to be attentive for that. In the previous class, Rohit, I have covered contract of guarantee and contract of indemnity, which is of unit 2. ठीक है, I am good, Roshni. And just go through the recordings once if there is any doubt regarding the topic, ठीक है। मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रही हूँ, सो अगर उस चीज को फिर से आपको सुनना है, फिर मैं रिपीट करूंगी, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इससे बेटर है रिकॉर्डिंग्स आपके अवेलेबल होंगे टिल द मिडनाइट, सो आप फिर से रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। उसके बाद भी आपको डाउट है देन आस्क मी, ठीक है। I have already discussed this in the previous class, क्या क्या मैंने पढ़ाया। Yes, in the exam, if you are giving examples, आप जो evaluator होता है उसका जो आंसर मार्क्स देने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव एग्जाम्पल, स्पेशली इन थ्योरी पेपर्स, ठीक है। Yes, all the 5 units are there in the exam, and all the 5 units carry equal marks. Okay. What can I share again, Khushbu? Just write it. Okay, Google Drive link, please. Someone
यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए गूगल ड्राइव का लिंक, मैं पब्लिश कर देती हूँ. That will be beneficial for other students also. Yes, this is unit 2. Anisha, जहाँ से आपने जहाँ से आपने ज्वाइन किया है ना नमिता, वहीं पर ही आप आफ्टर द क्लास वहां पर क्लिक करेंगे, सो यू कैन गेट दैट रिकॉर्डेड क्लास ऑफ टुडे इटसेल्फ. ठीक है. Discussed Poonam. There are many chapters in the Contract Act, but you have to मैंने सिर्फ वही सारे ही मैंने कंसेप्ट्स कवर किए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे मैंने ज्यादा टाइम दिया है. ठीक है. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रहा है. ठीक है. जैसे किसी के पास लैंड ऑफ बिल्डिंग है, मतलब जब उस पर्टिकुलर जो एक स्टेटमेंट है, एक जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज का एक वो नहीं होता है, क्या कहते हैं इसको, एक पर्चा. ठीक है. कि जिसके पास ये पर्ची होगा, दैट पर्सन हैज दैट पोजीशन. तो वैसे ही बिल ऑफ लैंडिंग में यही होता है व्हेन डूइंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स. जो आपकी जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, जो गुड्स की एक्चुअल पोजीशन है वो नहीं हुई है, वो कंस्ट्रक्टिव है. इन द सेंस वो जब पहुंचेगी किसी के पास तब वो एक्चुअल डिलीवरी होगा. अभी इस इन दिस ट्रांजैक्शन इट इज कंस्ट्रक्टिव. एम आई क्लियर? ये में अगर 6 chapters है, that is not relevant for me. The relevance is the syllabus of your related to BCom program. ठीक है. BCom program में आपका syllabus जिस तरीके से है उस वे में आपको पढ़ना पड़ेगा. जो जो topics उसमें है you have to go through that. अगर आपके CA की बुक में नहीं है वो chapters, then refer to my books or any other author's books. ठीक है. My notes, sorry. मटेरियल में अगर समझ नहीं आ रहा तो रेफर टू माय नोट्स, अदरवाइज रेफर टू एनी अदर बुक. ठीक है. बाकी स्टडी मटेरियल बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, सो यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट टू. All the units have equal marks. 5 units है, 5 units के equal marks होंगे. ठीक है. Under money is a movable property. वो movable property बेलमेंट एक्ट में नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में नहीं आता है. ठीक है. लेट्स मूव टू द चेतन. दिस इज वी विल डिस्कस कि बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बेलमेंट कैन बी ग्रेचुअस एंड नॉन ग्रेचुअस. ठीक है. ग्रेचुअस नॉन ग्रेचुअस हो सकता है, विच आई एम डिस्कसिंग नाउ. काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम करेंगे वो. ठीक है. Previous classes, just contact to the SOL team members. Again and again मैं रिप्लाई कर देती हूँ. ठीक है. एक ही डाउट पर एक ही चीज आप एक ही टॉपिक की मैम कॉन्ट्रैक्ट में एक चैप्टर है, सीए की बुक में कॉन्ट्रैक्ट में 6 चैप्टर है. यू हैव राइटेड दिस 15 टाइम्स. ठीक है. तो वो मिस हो जाते हैं. आप एक बार लिखिए, मैं वही रिप्लाई कर दूंगी. ठीक है. Yes, Chetan has given the link. I am publishing it, the link of the Google Drive. Anyone those who have not that Google Drive के जो link है वो नहीं है, वो आप ये सेव कर दीजिए. इसी में मैं सारे यूनिट्स के जो PPTs है, मेरे नोट्स है, वो मैं इसी में डाल देती हूँ. आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं. ठीक है. You can get that. Morning, Pratiksha. यूनिट 1 ही है फिलहाल, क्योंकि लावण्य यू नो दैट इन द प्रीवियस सेमेस्टर मैंने हमेशा यही कहा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ यूनिट, नॉट कंप्लीशन ऑफ अ क्लास, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द यूनिट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ इन द गूगल ड्राइव. ठीक है.
ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक मिल जाए, कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ मिल जाए एक ही स्लाइड, एक ही पीपीटी में। नहीं तो आप लोग ही कंफ्यूज होंगे। दैट इज वाई मैं एक ही उसमें सब कुछ कर देती हूँ। हिंदी के नोट्स अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है बिजनेस लॉ के, वंदना। यू कैन ऑल्सो रेफर दोस हिंदी बुक्स, बहुत सारे अच्छे बुक्स है। मैंने कुछ बुक्स रेफर भी किए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। मैंने स्लाइड्स में भी लिखे हुए हैं इन द फर्स्ट यूनिट, उसमें आप रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज जस्ट मेल मी, आई विल टेल यू सम गुड ऑथर बुक्स ऑफ हिंदी, ठीक है, हिंदी मीडियम में ऑफ बिजनेस लॉ। Manu, difference between bailment and license in the subsequent classes. वापस क्लास में जा रही हूँ, टॉपिक्स में जा रही हूँ, फिर जो रिमेनिंग डाउट्स है वी विल टेक लेटर ऑन। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ बेलमेंट में। जो बेलमेंट है दिस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। The bailment may be classified according to the benefit derived by the parties, and second is under the consideration or the reward, ठीक है। अब बेनिफिट के अकॉर्डिंग हम जब डेराइव करते हैं तब 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट इज बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, ठीक है। जब बेलर के बेनिफिट के लिए होता है दैट इज ऑफ दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ बेलमेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल हम पढ़ते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर। अब यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी एग्जाम्पल से बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास एक हॉर्स है, ही इज द ओनर ऑफ द हॉर्स, ठीक है। अब वो क्या है, उसको फॉर एग्जाम्पल ही इज लिविंग इन दिल्ली, ही हैज टू गो इन चेन्नई फॉर अटेंडिंग द मैरिज सेरेमनी ऑफ वन ऑफ हिज रिलेटिव, ठीक है। अब वो जो एक्स है वो यहाँ से जब चेन्नई जाएगा तो अपने हॉर्स को लेकर तो जा नहीं सकता, राइट। लेकर जाएगा तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स उसको इनकर करने पड़ेंगे, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू जाने पड़ेंगे। सो वो ये सब नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि वो वाई जो उसका दोस्त है उसके पास वो गया, उसने कहा कि यार मैं तो अपने रिलेटिव की शादी में जा रहा हूँ इन चेन्नई, तुम क्या मेरे हॉर्स का देखभाल कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो फॉर 10 days। तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं ध्यान रख लूंगा, ठीक है। सो एक्स ने क्या किया, उसने ट्रांसफर किया पोजीशन ऑफ हॉर्स टू वाई हु इज हिज फ्रेंड, ठीक है। अब जो पोजीशन ट्रांसफर करता है वो कौन होता है, बेलर, व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, और जिसके पास ये पोजीशन जाता है वो कौन हो गया, बेली। अब यहाँ पर किसका बेनिफिट हो रहा है, बेलर का बेनिफिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो उसको बाहर जाना है, उसके हॉर्स का देखभाल कौन करेगा, तो इसीलिए उसने अपना हॉर्स का पोजीशन वाई को दिया। सो दिस इज द बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब जो बेली है, बेली के पास अब ये हॉर्स का पोजीशन आया। अब ये जो बेली है इसको क्या करना पड़ेगा, हॉर्स का टेक केयर करना पड़ेगा, हॉर्स का जो भी देखभाल है, फॉर एग्जाम्पल उसका चारा, उसका बाथिंग मटेरियल, उसका फूड एक्सपेंसेस, दीज ऑल ही हैज टू बियर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको वी विल से ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जो उसके लाइवलीहुड को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस है, दीज आर कम अंडर द पर्व्यू ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हॉर्स को कुछ प्रॉब्लम हो गया, सो फॉर दैट he has to incur the medical expenses and these are termed as extraordinary expenses, ठीक है। अब ये जो expenses incurred करेगा Y, ठीक है, for the horse of X, जिसके पास अभी उसका पोजीशन है, ये जो expenses है वो कौन bear करेगा, obviously X bear करेगा। क्यों, क्योंकि horse तो उसका है, ठीक है, Y के पास तो सिर्फ उसका पोजीशन है, तो जो भी expenses incurred होगा for these 10 days this will be beared by the bearer, okay, this is the first number 1 point. Next point है कि after 10 days the Y has to return the horse and claim for all the reasonable expenses on the horse. अब ये horse की जगह अगर cow होता, ठीक है, गाय होती, और ये 10 दिनों के लिए जो दूध निकल रहा है, जो दूध मिल रहा है Y को from the cow, वो अगर
उसको मिल रहा है, उसको बेनिफिशियल है, उससे वो घी बना पा रहा है, बटर बना पा रहा है, छाछ बना पा रहा है, बहुत बेनिफिशियल है। अब 10 दिन बाद अगर वो बोले कि नहीं मुझे ये काव वापस नहीं करनी है, अब ये मेरी काव हो गई है, तो दिस इज अ ब्रीच ऑफ दिस बेलमेंट एक्ट, ठीक है। सो नाउ द बेलर दैट इज एक्स कैन स्यू वाई कि मैंने जो सिर्फ पोजीशन को ट्रांसफर किया है, ही इज नॉट गिविंग मी बैक माई cow, so now this is now he has to pay me back or he has to give the cow back, so तब वो केस कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में in the contract of bailment the bailee has to return the possession of the goods to the bailor at the set time, और जो भी एक्सपेंसेस होगा वो बेलर इनकलकेट करेगा, नॉट द बेल, ठीक है। ये इतना यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हॉर्स है वो थोड़ा सा पागल था, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वो रेड कलर देखता है और ब्लू कलर देखता है तो वो अटैक कर देता है, वो जाकर एकदम जोर से मार देता है। अब ये चीज बेलर ने बेली को नहीं बताया था, ठीक है। अब बेली को नहीं बताया और बेली की जो वाइफ है उसने रेड कलर का साड़ी पहन लिया, और ये जो हॉर्स है उसने जाकर बेली के वाइफ को मार दिया, ठीक है, जिसकी वजह से उस बेली की वाइफ के हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब उसके लिए भी एक्सपेंसेस इंकर्ड करने पड़े। सो ये एक्सपेंस कौन देगा? ये भी बेलर देगा। क्यों? क्योंकि बेलर ने कोई भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हॉर्स, रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर गुड विच ही इज ट्रांसफरिंग द पोजीशन टू अनदर पर्सन, वो अगर फैक्ट उसने छुपाया है, दैट इज नॉट good, and that is why all the expenses incurred due to that defect has to bear by the bailor, ठीक है। ये समझ में आया? अगर बेलर ने कुछ छुपाया है और उसके वजह से बेली को कोई फर्क पड़ रहा है, बेली को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो बेलर को वो एक्सपेंसेस इंकर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट समझ में आया आपको? ओके। अनदर पॉइंट इज दैट कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि ये जो बेली है, बेली के पास अभी ये हॉर्स है, अब इस हॉर्स की अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, नेचुरल डेथ हो जाती है, तो वाई इज नॉट लाइबल टू एक्स। अगर कोई नेचुरल डेथ के वजह से, जैसे ये 10 दिन के लिए गया, 4th डे को ही इस हॉर्स की मृत्यु हो गई, ठीक है, ड्यू टू नेचुरल कंसर्न। अब मृत्यु का समय तो कोई बता नहीं सकता है, ना इंसानों का ना जानवरों का, तो अगर उस वक्त डेथ हो जाती है फॉर नेचुरल कंटेक्स्ट के लिए, नेचुरली होता है, तो वाई इज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी टुवर्ड्स एक्स, ठीक है। ये समझ में आया? और 4 दिन उससे पहले के जो 4 दिन के जो एक्सपेंसेस है रिगार्डिंग फूड एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, वो सब एक्स को वाई को देने पड़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? अब एक और केस इसमें से ही जनरेट होता है, ठीक है। ये जो मैं एक्स्ट्रा थिंग्स बता रही हूँ ना, यू हैव टू राइट इन द नोट्स कॉपी, ठीक है, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा अपने कॉपी में, अपने नोट्स कॉपी में। अनदर थिंग इज, अब जो वाई है, वाई ने हॉर्स को सेकेंड डे को उसने हॉर्स को धुलाया, अच्छे से धुला कर उसने रात को रख दिया, ठीक है। उसकी वजह से हॉर्स को सर्दी लग गई, जिसकी वजह से वो उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कुछ एक्सट्रीम हो गया था, उसकी वजह से मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर वाई लायबल होता है, क्योंकि उसके नेग्लिजेंस की वजह से, वाई के नेग्लिजेंस की वजह से हॉर्स पर मृत्यु हुई है। वो जो गुड्स है जो उसके पोजीशन में है, उसके वो नुकसान हुआ है। सो नाउ द वाई हैज टू pay the amount, pay the expenses, pay the actual amount of the horse to X, ठीक है। So this is all in this thing। ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि बेलमेंट एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, जो ये वाला एग्जांपल था, बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली, जो कि हमारा प्रीवियस एग्जांपल था। ये जो एग्जांपल था इसमें बेली का बेनिफिट था। क्यों? बेलर ने अपने दोस्त जो को एक कार दिया फॉर द पर्पस ऑफ द एक्स, सो नाउ हियर द बेनिफिट इज ऑफ बेली, ठीक है। तो यहाँ पर बेली का बेनिफिट है, और इस वाले एग्जांपल में किसका बेनिफिट था? बेलर का बेनिफिट था, ठीक है। नाउ एक और होता है, दैट इज बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड बेली, ठीक है।
है। इसमें एग्जांपल क्या है, ए द सेलर delivers some goods to railway company for the purpose of transmission to B the buyer, ठीक है, ये एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है म्यूचुअल बेनिफिट का, जो कि फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या राय बच्चन है, ठीक है, या फिर समझ लीजिए प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा एक टेलर के पास गई, ठीक है, उन्होंने बोला कि मेरे जो अनस्टिच क्लॉथ्स है वो आप स्टिच कर दीजिए। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का वो हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, और यहाँ पे बेनिफिट क्या है, दोनों का बेनिफिट है। कैसे, ए को प्रोडक्ट मिल रहा है इन टर्म ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, और बी को रेम्यूनरेशन मिल रहा है क्योंकि वो कुछ अमाउंट पे करेंगी, कोई कंसिडरेशन पे करेंगी, वो भी बेनिफिट है। साथ ही साथ उसको एक और गुडविल का भी बेनिफिट है कि इतने बड़े एक्ट्रेस मुझसे सिलवा रही है। सो देयर इज अ म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड द बेली, ठीक है, समझ में आया। तो इसको हम इस कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं कि फ्रॉम द बेनिफिट, किसके पास बेनिफिट है, बेनिफिट डेराइव्ड बाय द पार्टीज। पार्टीज कौन है, बेलर्स के बेनिफिट से सिर्फ एक्सक्लूसिवली बेलर के बेनिफिट से हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट इज बेली के बेनिफिट से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड द बेली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिवॉर्ड और कंसिडरेशन, दैट इज बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड और बेलमेंट विद रिवॉर्ड, ठीक है। विदाउट रिवॉर्ड को हम क्या कहते हैं, विदाउट कंसिडरेशन हमको क्या कहते हैं, हम ग्रेचुअस बेलमेंट कहते हैं, ग्रेचुअस कहते हैं। याद है पिछले फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक मैं ये टर्म्स बार बार रिपीट कर रही हूँ, सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स, ठीक है। विदाउट रिवॉर्ड और विदाउट कंसिडरेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेचुअस कहते हैं, ठीक है। ग्रेचुअस कंसिडरेशन और ग्रेचुअस रिवॉर्ड, और विथ रिवॉर्ड और विथ कंसिडरेशन को क्या कहेंगे, नॉन ग्रेचुअस कंसिडरेशन और नॉन ग्रेचुअस रिवॉर्ड, ठीक है। अब विदाउट रिवॉर्ड और ग्रेचुअस रिवॉर्ड में क्या आता है, ग्रेचुअस बेलमेंट इज वन इन विच नाइदर द बेलर नॉर द बेली इज एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन, कोई रेम्यूनरेशन एक दूसरे को नहीं मिलता है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विथ ग्रेचुअस रिवॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर A lends to car to his B to B for friend B for personal use, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में दिया कि Y ने X जो उसका दोस्त है उसको उसने अपना कार दिया, ट्रांसफर पोर्शन किया, सो यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं था, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। नेक्स्ट इज बेलमेंट विथ रिवॉर्ड और नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट, ठीक है। नॉन ग्रेचुअस मतलब जहां पर इधर बेलर और बेली दोनों में से किसी एक को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ठीक है। सो जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था उसमें एक्सपेंसेस इंकर्ड कर रहे हैं, या फिर उसी को फर्स्ट एग्जाम्पल को ही हम अगर ऐसे देखें कि वाई जो है वो टैक्सी ओनर है, ठीक है, वो टैक्सी देता है या फिर कार्स देता है फॉर ऑन हायरिंग बेसिस, तो यहाँ पर उसको कंसिडरेशन मिलेगा फ्रॉम एक्स, ठीक है। लेकिन अगर वो फ्रेंड को दे रहा है तो वहां से उसको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, विच आई हैव रिटन हियर, ठीक है, कि वाई जो है अगर वो फ्रेंड को दे रहा है तो वो दैट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड व्हिच इज नोन एज ग्रेचुअस बेलमेंट, एंड दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली ओनली, ओके। Whereas if he is giving the car on hire basis or he is a taxi owner, then that will come under the purview of with consideration, and this is also will be called as non-gratuitous bailment, and this will be for the benefit of the both bailor and bailey। कैसे, बेली को वो सामान मिल रहा है, वो गुड्स मिल रहा है, उसके लिए वो पर्पसफुल जो काम है वो कर पाएगा, और बेलर को कंसिडरेशन मिल रहा है, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ग्रेचुअस एंड नॉन ग्रेचुअस का डिफरेंस दिया गया है कि बेनिफिट किसको है, जो कि मैंने भी डिफरेंशिएट कर दिया था, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस क्या है ये सब लिखा हुआ है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू बोथ द एग्जांपल्स, उसमें मैंने समझा दिया है, यहाँ पर सिर्फ उसको लिख दिया गया है, सो दैट इज यू हैव टू लर्न, यू हैव टू राइट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेचुअस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट, टाइप्स ऑफ बेलमेंट, ठीक है। ये जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड्स ऑफ बेलमेंट और टाइप्स ऑफ बेलमेंट और एसेंशियल्स ऑफ अ बेलमेंट, ठीक है। या फिर आपका ये जो डिफरेंस बिटवीन ग्रेचुअस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट।
सेल एंड बेलमेंट के बीच में डिफरेंस मैं तभी आपको सजेस्ट करूंगी पढ़ने के लिए जब आप नेक्स्ट यूनिट जो कि हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है वो आप जब पढ़ लेंगे उसके बाद यू हैव टू रीड दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, ठीक है, तब जाके आपको जो पिक्चर है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। Here comes the distinction between license and bailment, ठीक है, जो आप में से एक पूछ रहे थे तो मैंने कहा था आगे हम पढ़ेंगे, ओके। सो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइसेंस एंड बेलमेंट। लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस एक अग्रीमेंट होता है जहां a person is authorized to enter or use the premises or place owned by another person। एक premise है, एक प्लेस है, उसके पास वो ऑथराइजेशन है कि उस चीज को वो यूज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर दो पार्टीज होती है, लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। लाइसेंसर कौन होता है? जो ऑथराइज करता है अदर पर्सन को कि उसके प्रेमाइस या उसके प्लेस को यूज करे, और लाइसेंसी वो होता है जो उस प्रेमाइसेस को या उस लैंड को, उस एरिया को वो यूज कर रहा है, दैट इज लाइसेंसी। और जिसने वो करने के लिए, वो यूज करने के लिए ऑथराइजेशन दिया है, दैट इज द लाइसेंस, ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पर चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? It may be noted that in case of license there is no change in position of goods। यहाँ पर कोई change नहीं होता है। You have to remember this, that in license agreement there is no change in position of goods, that is the owner continues to be in possession of goods। जो owner होता है उसी के पास वो गुड्स का पोजीशन होता है, वो जो प्लेस है वो कहीं जा नहीं रहा है, आप आकर उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। सो द licensee are coming there and doing the work। जो ओनर है वो ना ही अपने ओनरशिप को चेंज कर रहा है, ना ही पोजीशन को चेंज कर रहा है। दिस मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन लाइसेंस अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्यों? क्योंकि लाइसेंस अग्रीमेंट में देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स, whereas in contract of bailment there is change in position of goods, क्योंकि वहां पर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स हो रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, ठीक है। इन यही लिखा गया है, इन केस ऑफ बेलमेंट पोजीशन ऑफ गुड्स चेंजेस फ्रॉम द बेलर टू बेली एंड हेंस द बेली इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू टेक केयर ऑफ सेफ्टी ऑफ द गुड्स, ठीक है। दिस इज द थिंग, ओके। नाउ देयर इज अ केस स्टडी रिगार्डिंग दिस। यू कैन, I know you can very well read this and understand this। आते हैं हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर की क्या ड्यूटीज है एंड बेली की क्या ड्यूटीज है। अब ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्स इन गुड्स बेल टू द बेली। अब जो हमने ये वाला एग्जांपल पढ़ा था, लेट मी कम देयर, हाँ, इसमें मैंने ये चीज ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया था कि बेलर का क्या ड्यूटी है, उसको सब कुछ डिस्क्लोज करना है रिलेटिंग टू द गुड्स, रिलेटिंग टू द हॉर्स टू द बेली, ठीक है। सो दिस इज द ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्स इन गुड्स बेल्ड टू द बेली, ठीक है। दिस इज अंडर सेक्शन 150, ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, yes, I have already discussed when I'm telling you the example. Next, under this section, a duty of gratuitous bailer to disclose falls in the goods bail is different from the duty of non-gratuitous bailer। अगर आप with reward कर रहे हैं, without reward कर रहे हैं, तो दोनों के duties differ करते हैं। अब कैसे? Duty of a gratuitous bailer or a bailer without reward, ठीक है। एक bailer which has not having reward getting any consideration, उनका क्या होगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखते हैं। ये जो फर्स्ट एग्जांपल था, दैट इज here is no consideration for the bailor। यहाँ बेलर को कोई कंसिडरेशन नहीं है। सो यहाँ पर उसकी क्या ड्यूटी होती है? अ ग्रेटुअस बेलर इज वन हु डिलीवर्स दिस गुड्स टू द बेली विदाउट एनी चार्ज और रिवॉर्ड। उसने अपने दोस्त को दिया, कोई चार्ज उसने उससे लिया नहीं है, ठीक है। सच बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली falls in the goods bailed of which the bailor is aware and which materially interfere with the use of them or expose the bailor to the extraordinary risk। अब वो जो कार बेलर ने बेली को दिया था ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, उसमें उसने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया था, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर की डिस्क्लोज करे कि वो उस कार का ब्रेक खराब है कि नहीं, उस कार में पेट्रोल है कि नहीं, उस कार का
कोई ल्यूब्रिकेंट खत्म हो गया है कि नहीं, या फिर उसके कार का कोई कंपोनेंट खराब हो गया है कि नहीं, दिस थिंग हैज टू बी डिस्क्लोज्ड बाय द बेलर टू द बेली, क्योंकि अगर डिस्क्लोज नहीं करेगा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क हो सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, लाइफ थ्रेट हो सकता है, सो he has that obligation to disclose that to the bailey. ठीक है, if he does not make any disclosure, he is liable to indemnify the bailey for the damages. अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया तो उसके वजह से कार को कोई नुकसान आता है, बेली को कोई नुकसान होता है, तो जो बेलर है he is liable to indemnify the bailey for the damages. ठीक है, समझ में आ गया? उसको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को इंकर्ड करना पड़ेगा, किसको? बेलर को, फॉर द बेली। अगर बेलर ने उसको जो चीज पता था अबाउट द गुड्स वो उसने बेली को नहीं बताया है तो। ड्यूटी ऑफ अ नॉन ग्रेचुअस बेलर और द बेलर विथ रिवॉर्ड। अब ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर बेलर को नहीं, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल, यहाँ पर भी कंसिडरेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं कि ड्यूटी ऑफ अ नॉन ग्रेचुअस बेलर और अ बेलर विथ रिवॉर्ड। अ नॉन ग्रेचुअस बेलर इज वन हु डिलीवर्स द गुड्स टू द बेली फॉर रिवॉर्ड एंड हेंस ही हैज अ ग्रेटर ड्यूटी टू परफॉर्म। एक नॉन ग्रेचुअस बेलर कौन होता है? जो कि अपने गुड्स को बेली को दे रहा है एट अ कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, मैं एक हायर वाली वो कंपनी हो, मैं अपने कार्स को हायर में मतलब देती हूँ कि लोग मुझसे आकर गाड़ी लेकर जाते हैं और उसके बदले मुझे कंसिडरेशन देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी मेरी ड्यूटी होती है कि मैं बताऊं कि इस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट्स है कि नहीं। ठीक है, सेक्शन 150 lays down that if goods are bailed for hire, the bailor is liable for all the defects in the goods bailed, whether he was aware of the defects or not. अगर मैं अवेयर हूँ या नहीं हूँ, फिर भी मुझे सारे डिफेक्ट्स की जो उसके वजह से कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, आई एम लाइबल टू पे टू द बेली। ठीक है, समझ में आया? पहले वाले में जब ग्रेचुअस बेलर था वहां पर क्या था कि उसको पता जो है उसी के लिए वो बियर करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो उसको पता नहीं है वो उस डिफेक्ट्स के लिए भी उसको पे करना पड़ेगा अगर उसके वजह से बेली को कोई नुकसान आता है तो। ओके, इग्नोरेंस ऑफ डिफेक्ट्स वुड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सक्यूज टू हिम। ठीक है, नेक्स्ट वी विल कम टू द ड्यूटी टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट। जो भी एक्सपेंसेस है बेलमेंट के, ही हैज टू बियर दैट, जो कि हमने इस एग्जांपल में देखा था। ठीक है, बेली ने जो भी एक्सपेंसेस बियर की है, जो भी एक्सपेंसेस, वेदर इट इज ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, all the expenses have to bear by the bailor. Okay, this is also I have done that. Now it's duty to indemnify bailey for loss in case of premature termination of gratuitous bailment. वही जो मैंने कहा, अगर हॉर्स की डेथ हो जाती है 4th डे पर या 5th डे पर, तो उससे पहले के जो भी एक्सपेंसेस है that has to be paid to the bailey. Okay, duty to indemnify bailey for loss in case of defective title. Where the bailey suffers from loss due to defective title of the bailor is responsible to the bailey for any loss which he may sustain due to reason that bailor was not entitled to make bailment or to receive back the goods or give direction respecting them. For example, A delivered to a motorbike to B for personal use for 7 days. A ने B को एक motorbike दिया, एक bicycle, एक motorbike दिया, ठीक है, for personal use of B for 7 days. Subsequently, B discovered that it was stolen. ठीक है, B ने देखा कि वो चोरी हो गया। ठीक है, अब C, the owner, brought an action against B and B had to pay him compensation. अब जो C है, सॉरी A है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, A जो ओनर है वो B के अगेंस्ट एक्शन लेगा और B जो है उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, A, the bailor is liable to indemnify B for the loss caused to him by the defective title. Okay, so here the example is that कि A ने B को एक मोटर बाइक दिया, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर B को पता ही नहीं था कि A जो है वो उसका ओनर है कि नहीं। ठीक है, अब उसको लगा A ही ओनर है, लेकिन A ओनर नहीं था, यहाँ पर C ओनर था। ठीक है, अब ये जो बाइक है वो चोरी हो गया। ओके,
अब जो सी है वो ये चीज बी के अगेंस्ट उसने एक केस किया कि यू हैव टू पे मी द कंपनसेशन। अब जो ए है, जो बेलर है, ही इज लाइबल टू इंडेमनिफाई बी फॉर द लॉस कॉस्ट टू हिम बाय द डिफेक्टिव टाइटल। अब जो वो पैसा है वो बी नहीं देगा, वो ए देगा। अगर बी दे भी देता है सी को, दैट लॉस हैव टू बी इंडेमनिफाई बाय द ए। क्यों? ए ने डिफेक्टिव टाइटल, उसने ये मिस रिप्रेजेंट किया कि आई एम द ओनर, ठीक है। सो नाउ ही हैज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडेमनिफाई बी फॉर द लॉस कॉस्ट टू हिम ड्यू टू द डिफेक्टिव टाइटल, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? आई एम रिपीटिंग वंस मोर, और टाइम भी नहीं है। बस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही हो गया, अभी प्लेज भी बाकी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बाकी है। अगर एक चीज को मैं बार बार रिपीट करूंगी, ठीक है, जो कि आप रिकॉर्डिंग से फिर से समझ सकते हैं, लेकिन फिर से अगर मैं रिपीट करूंगी तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज आई हैव ओनली 15 क्लासेस, 7 क्लासेस हैज गॉन, अभी भी 3.5 यूनिट्स बचे हुए हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आई कांट एक्सप्लेन, ओके। यहाँ पर आपकी ड्यूटी ज्यादा है, आपको पढ़ के आना है। माई ड्यूटी इज ओनली टू डिस्क्राइब कि क्या क्या चीजें हैं आपके कंटेंट में, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू वंस की मैंने क्या बोला है, रिकॉर्डिंग में फिर से सुनिए, फिर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। अब जो गुड्स बेलर ने बेली को दिया है वो वापस मिलना, वापस लेना इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर। अब बेलर ने बेली को अपना हॉर्स दे दिया, ठीक है, और हॉर्स बीमार पड़ रहा है, तो बेलर क्या कर रहा है, 10 दिन बाद वो ले नहीं रहा है, ठीक है। उसको लग रहा है कि चलो वहीं उसके पास मौत हो जाएगी तो सही है, मुझे कोई क्रिमिनेशन कॉस्ट ये सब देना नहीं पड़ेगा, ये सब वो सोच रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, जब वो 10 दिन के लिए बाद उसको वो जो हॉर्स है वो वापस लेना ही पड़ेगा। सो this has been explained here, that duty to receive back the goods, okay. Here comes the duties of bailey. bailey की ड्यूटी क्या है? रीजनेबल केयर लेना होगा ऑफ द गुड्स बेल्ड, जो हॉर्स उसको मिला है उसका रीजनेबल केयर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर goods are lost or destroyed in spite of the fact that bailey took the reasonable care of them, the burden of proof is on the bailey to show that it was not negligent. अगर वो जो सामान दिया है, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स है, वो भाग गया, ठीक है, या हॉर्स की मृत्यु हो गई, तो जो बेली है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो उसके नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ है। अगर ये प्रूफ नहीं हुआ कि उसके नेग्लिजेंस के वजह से नहीं हुआ है, तो ऑल द एक्सपेंसेस हैव टू बियर बाय द बेली, ठीक है। वही है, सिमिलर थिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आप अनऑथराइज्ड यूज नहीं कर सकते। आपने जो हॉर्स 10 दिन के लिए बेलर ने आपको दिया है फॉर बाय ट्रांसफरिंग द पोजीशन, अब आप वो 10 दिन के लिए शादी में उस घोड़े को आप नहीं दे सकते कि शादी में वो घुड़सवारी करवाए, या फिर कोई हॉर्स राइडिंग का कोई एक्टिविटी उसने स्टार्ट कर दिया फॉर दैट 10 डेज, वो आप नहीं कर सकते। दैट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विथ हिज ओन गुड्स। आप अपने गुड्स के साथ वो गुड्स को मिक्स नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज आता है, विद द कंसेंट, विदाउट द कंसेंट। वेयर द बेली मिक्सेस बेलर्स गुड्स विथ हिज ओन गुड्स विद बेलर्स कंसेंट, जहाँ पर बेलर्स के कंसेंट के साथ अपने और बेलर के गुड को मिक्स करता है, वहां पर बेली इज नॉट अलाउड टू मिक्स गुड्स बेल्ड विथ हिज ओन गुड्स, but he may do so with the consent of the baler, and in such a case both the parties shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हॉर्स की जगह उसने अपने काउ ही दिया होता, ठीक है। बेलर ने बेली को अपना काउ दिया है फॉर 10 डेज ताकि वो उसका टेक केयर करे, क्योंकि उसको दूसरे की शादी में जाना है इन डिफरेंट स्टेट। अब उसने उससे कंसेंट लिया कि मेरे पास भी एक काउ है, हम दोनों के प्रोडक्ट्स को, अगर हम दोनों के जो मिल्क फूड देते हैं वो दोनों को मिक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या मैं वो कर सकता हूँ? अगर बेलर ने कंसेंट दिया और उनको पता है कि उनको कितना रेस्पेक्टिव शेयर मिलेगा, that is pre-decided in the profits, then they can mix the goods, okay, otherwise they can't, ठीक है। without the consent of baler it can't be possible।
यहाँ पर mixture is not separable. In such a case, the baler is entitled to compensated for the bailee for the loss of the goods. जहाँ पर जो mixture है वो separable नहीं हो सकता, वहाँ पर जो baler है he is entitled to compensated for the bailee for the loss of the goods. For example, A bales 10 kg of MP brand flour worth rupees 300 to. अब A ने B को 10 किलो बेल किया है फॉर एमपी ब्रांड फ्लोर, ठीक है। अब बी विदाउट एज कंसर्न मिक्सेस द फ्लोर विद द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ फ्लोर ऑफ हिज ओन वर्थ ₹200। उसके पास जो इंफीरियर क्वालिटी का फ्लोर था उन दोनों को उसने मिक्स कर दिया, ठीक है। बी मस्ट कंपनसेट ए फॉर द लॉस ऑफ दिस फ्लोर। अब जो बी है, बेली है, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा बेलर को, क्योंकि उसने उसका मिक्सचर करके खराब कर दिया है चीजों को, ठीक है। इन द गुड्स, बेली के पास ये ड्यूटी है कि इसको रिटर्न करना है, विच इज इन दिस केस उसको इसकी ये ड्यूटी है कि उसको ये जो हॉर्स मिला है फॉर टेकिंग केयर ऑफ दैट, उसको ये 10 दिन के बाद वापस करना पड़ेगा टू द बेलर, ओके। अब आते हैं बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स। डिफरेंट ओनर्स मिलकर भी एक बेलमेंट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। जैसे ए बी सी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ कार, दे जॉइंटली बेल्ड द कार टू डी फॉर अ ट्रिप टू पानीपत, ठीक है। तीनों मिलकर एक उन्होंने कार खरीदा है, तीनों जॉइंट ओनर्स है, तो वो तीनों मिलकर भी अपने कार को बेलमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। एक को दे दिया, ठीक है, तो वो अपने ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाता है। तो जॉइंट बेलमेंट ये होता है, ओके। अब ड्यूटी टू रिटर्न एनी इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बिल्ड। अब कोई भी प्रॉफिट्स इंकर्ड होते हैं, अगर वो हॉर्स की वजह से, उस हॉर्स जो उसके पास 10 दिन था, उस हॉर्स के लिए कोई लॉटरी लग गई या उस हॉर्स को लेकर कोई फॉरेनर ने आके 1 लाख रुपए दे दिया, तो वो 1 लाख रुपए बेली की ड्यूटी है बेलर को वापस करने की, क्योंकि बेली इज नॉट द ओनर ऑफ द हॉर्स, ही इज इन द पोजीशन, ठीक है। सो इसकी ड्यूटी है जो भी प्रॉफिट आ रहा है, कोई भी इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी उसको मिल रहा है, for that goods he has to return to the baler, okay। Duty not to set up any adverse title against the baler states that the bailee is debarred from denying the baler's authority to bail the goods and to receive them back। बेली at the end of the contract ये नहीं बोल सकता, उस 10 दिन के बाद ये नहीं बोल सकता है कि मैं ये हॉर्स नहीं दूंगा, ठीक है। The bailee has to give back the possession of the goods back to the baler, okay। यहाँ पर राइट्स है बेलर की ऑलमोस्ट सिमिलर है, यू कैन रीड दैट, राइट्स टू बेली, यू कैन रीड दैट। इसमें प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली यू कैन मैसेज मी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ओके। टर्मिनेशन, ऑब्वियसली जब आप एक्सपायर हो जाएगा वो पीरियड, तब आपका टर्मिनेशन हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। या फिर आपका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, वो पर्पस है, जैसे वो कार का पर्पस था कि मैं वो आज पानीपत से घूम कर आ जाऊंगी, ठीक है, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव जैसे अकम्प्लिश हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। सेकेंड, थर्ड इज अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है विद द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट, उसके वजह से भी टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, वो कार ही जल गया, जब तक वो ट्रांसफर करते पोजीशन को वो कार ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो वहीं पर वो बेलमेंट का टर्मिनेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर डेथ हो गया बेलर का या बेली का, तो दैट इज आल्सो टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हिच आई हैव डिस्कस्ड यू अंडर द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स चैप्टर, यू कैन रेफर फ्रॉम दैट, ठीक है। सो this contract of bailment, these are the case studies, you can go through once, मैंने ये डाल दिया है यहाँ, इसमें hints भी रखे हुए हैं, you can check these once, ठीक है। let me take any doubts if you have any and we will wind up the class। SOL book is in your website, ठीक है, आप वेबसाइट से देखिए, ठीक है। बाकी रेगुलर के स्टूडेंट्स को कोई बुक नहीं मिलता है, they have to purchase that। आपको एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, so don't expect कि वो फिजिकल फॉर्म में ही आपको हमेशा मिलेगा, you can access to the इंटरनेट, ठीक है। आपके जो वो है
डैशबोर्ड है उसी में है, स्टूडेंट डैशबोर्ड में एक्सेस फ्रॉम दैट, ठीक है, दैट विल आल्सो गुड फॉर यू। सेम ही चीज है जो आपके डैशबोर्ड में है ऑनलाइन फॉर्मेट में, वही आपको फिजिकल फॉर्मेट में पहले मिलता था, ठीक है। अभी पेपर का कॉस्ट भी कितना इंक्रीज हो गया है, तो पेपर वेस्टेज क्यों करना है जब आप इंटरनेट से इंटरनेट बोल रहे हो आपके डैशबोर्ड से पढ़ सकते हैं सेम स्टडी मटेरियल, तो यूज दैट, ठीक है। Already sent the link of the Google Drive, you can access from that, okay. Yes, this is the second unit after Indian Contracts Act 1872. Okay, अगर मेरी voice break हो रही है, I am sorry for that. There will be some network issue. There is no recorded lectures of law as far as I know. आपके लाइव सेशंस ही होते हैं और लाइव सेशंस के एंड के बाद till the midnight you can again re-listen this my lecture till the midnight, ठीक है। The unit 2 will be given after the completion of unit 2, ठीक है। मैं आपको ये already I have discussed with you contract of bailment, contract of guarantee, contract of indemnity, आपका सिर्फ एक contract of agency बचता है, ठीक है। सो ये जो तीनों यूनिट्स है और ये जो contract of agency, चारों के मैं पीडीएफ आपको सेंड कर देती हूँ आज, ठीक है, आपकी गूगल ड्राइव लिंक में। ये जो एजेंसी वाला है ये मैं 15th क्लास के बाद लूंगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करूंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो कि बहुत इजी है, ठीक है। तो इजी चीज को करना ज्यादा बेटर नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। ऑलरेडी मैं यूनिट 2 के ये 3 कवर कर चुकी हूँ, थर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वो मैं एंड में करूंगी। अब मैं नेक्स्ट क्लास में यूनिट 3 स्टार्ट कर दूंगी ताकि आपको सारे यूनिट के थोड़े ओवरव्यूज पता हो जाने चाहिए, ठीक है। यूनिट 1 आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, so now you have to go through from that, ठीक है। So in the next class that will be on your coming Monday from 11:30 to 12:30 I will take your unit 3 that is Sale of Goods Act 1930, ठीक है। तो यूनिट 1 डालिए, आज मैं यूनिट 2 डाल दूंगी, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वो भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। Books I already have suggested several times Purvi that MC Kulchul book is very good, Sushma Arora book is very good, ND Kapoor book is good, so आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। Lavanya has asked that मैम अगर बेली से ही हॉर्स के केयर में कुछ हो जाता है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑब्वियसली बेली ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर बेली की नेग्लिजेंस के वजह से हुआ है, हॉर्स की मृत्यु हुई है, तो बेली ही रिस्पॉन्सिबल होगा। देन ही हैज टू इंकर्ड all the expenses of the horse as well as the cost of horse and he has to given to the bailiff, ठीक है। Is that clear, Lavanya? चल रहे हैं बाकी सेमेस्टर्स के, तो अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, बट श्योरली एट द एंड ऑफ दिस जून और द स्टार्टिंग ऑफ जुलाई यू विल हैव सम ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। कब होगा क्या होगा सब आपको नोटिस मिल जाता है। आई सजेस्ट जो भी आप ये जो रिपीट करने के लिए आप जो बोलते हैं ना वो एक बार रिकॉर्डेड सेशन में सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद भी आपको डाउट हो रहा है मतलब तब आप फिर मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। इनफैक्ट आई कैन सजेस्ट दैट हर एक स्टूडेंट फिर से ये रिकॉर्डिंग सुनिए, तो ताकि क्या होता है ना, आप एक चीज को बार बार सुनेंगे और अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर फ्रेंड को ना देकर अपनी फैमिली मेंबर को दे रहे हैं तो फैमिली मेंबर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना, वो ब्लड रिलेशन हुआ तो दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर ब्लड रिलेशन के बाहर हो गया तो देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एलमेंट, ठीक है।
No, duties of Bailey is almost kind of similar to the duties of finding of goods, but the duties and obligations of finder of goods you have to do, because ये मैंने quasi contracts में पढ़ा दिया है, यूनिट 1 के स्लाइड्स में है, मैं बार बार बोल रही हूँ, सो गो थ्रू फ्रॉम दैट, ठीक है, वहां से पढ़िए, वही सेम चीज यहाँ रिपीट हुआ है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, वहां से जाकर फिर से आपको पढ़िए, लेकिन आपको याद होना चाहिए मैंने क्या पढ़ाया था, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है। वेलकम आकाश। yes, chapter name, this is unit 2, I will say, not chapter 12. Liner is not important, that is why I am not covered. It is enough, but I suggest कि आप बुक से भी पढ़िए, क्योंकि लॉ को एग्जाम्पल्स, केस लॉस और उसके साथ पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। For today, I have already discussed all the doubts which I have got. Yes, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में दे सकते हैं, बट मेक श्योर स्टार्टिंग ऑफ द पेपर से लेकर लास्ट पेज तक आपका मीडियम ऑफ राइटिंग शुड बी सेम। अगर हिंदी में लिख रहे तो हिंदी में एकदम लास्ट तक होना चाहिए, इंग्लिश में लिख रहे तो इंग्लिश में पूरा होना चाहिए, मिक्स ऑफ मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर वैलिड नहीं होता है। ओके, प्लेज आई विल आल्सो गिव, ये सुषमा अरोड़ा मैम के बुक में नहीं है, ये एक सबसेट है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है, इसके एग्जांपल्स की पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी। दिस इज जस्ट अ माइनर थिंग, अगर आपको बेलमेंट समझ में आ गया, प्लेज भी समझ में आ गया, प्लेज इज अ सबसेट ऑफ दैट बेलमेंट, ठीक है। आई विल कवर ऑब्वियसली इन 15th क्लास में, ये मैं कवर करूंगी। लवन्या, रिजल्ट्स भी आ जाएंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, मैंने गूगल ड्राइव लिंक अभी दिया है, उसमें ही मैं सेंड करूंगी दिस यूनिट। दैट अगर उसने बेलर ने बेली को काव दिया है, ठीक है, जो ट्रांसफर ऑफ गुड है वो काव है, तो उससे जो मिल्क जनरेट होता है और उसका जो मनी अर्न होगा, उससे जो भी प्रॉफिट आएगा, उसकी जो रिस्पॉन्स, उसकी जो हक है वो बेलर का हक है, बेली का उस पर कोई हक नहीं है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दिस इन द क्लास, ठीक है। वेलकम पूनम, वेलकम एवरीवन। ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं आज सारे जो भी नोट्स है वो मैं दे दूंगी गूगल ड्राइव में, उसी लिंक पर, तो ये लिंक आप सेव करके रखेगा। वी आर मीटिंग इन द कमिंग मंडे, ठीक है, मंडे फ्रॉम 11:30 to 12:30, एंड आई विल स्टार्ट with the unit 3, that is sales of product 1930, ठीक है। All the best, keep studying, thank you।